कहते हैं एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। नॉलेज और एजुकेशन कोई प्रिविलेज नहीं है, ये सभी का हक है। और आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं जो ये हक सभी को प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो देश के या विदेश के किसी भी कोने में बैठे हो, वो एजुकेशन ले सकते हैं, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, चाहे उनकी कोई भी उम्र हो। वो अपनी डिग्रीज अपने नाम कर सकते हैं। आज हम मौजूद हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के 38th कॉन्वोकेशन सेरेमनी में। इस सेरेमनी में हम बात करेंगे उनकी वाइस चांसलर से, जो प्रमोट करते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को, और जानेंगे उनसे क्या क्या नए इनिशिएटिव्स वो लेती हैं और क्या और कुछ नया हमें इस यूनिवर्सिटी में देखने को मिल सकता है। मैम, कितना चैलेंजिंग रहता है आपके लिए, क्योंकि हर तरफ से पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड से स्टूडेंट्स आते हैं, तो सबको कांटेक्ट करना, सब तक अपनी बात पहुंचाना और उनकी चीज़ें काफ़ी इजीली ट्रांसलेट करना, वो कितना चैलेंजिंग रहता है? तो जैसे आप जानते हैं हमारा 3 tier आर्किटेक्चर है। हेडक्वार्टर्स में यहाँ जो फैकल्टी है कोर्स मटेरियल तैयार करता है। हमारा 69 रीजनल सेंटर्स हैं, 2000 के ऊपर हमारा स्टडी लर्नर सपोर्ट सेंटर्स हैं, और जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट, दैट इज़ द कॉन्टैक्ट पॉइंट। और वहाँ हमारे 52,000 से ऊपर काउंसलर्स हैं जो एक्चुअली रेगुलर बेसिस में क्लासेस लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम आईसीटी के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, और उसको और लार्ज बेस करने के लिए 1-to-1 आई मीन जो बात किया जाता है कि एंगेजिंग कंटेंट बनाएंगे और हाउ टू गो अबाउट इट। आई थिंक एआई का टूल फ्यूचर में बहुत यूज़ होगा, जहां हम कह सकते हैं कि कस्टमाइजेशन, पर्सनलाइजेशन एज पर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट हम प्रोवाइड कर पाएंगे। तो फ्यूचर में आई थिंक टेक्नोलॉजी को हम जितना पॉसिबल है अडॉप्ट करेंगे। Centers and units, esteemed faculty members, officers of the university, staff members, distinguished guests, dear graduates and their parents. Namaskar. It is an absolute delight to join you virtually for the 38th convocation of IGNOU, an institution that has redefined education, broken barriers, and brought learning to every corner of Bharat. Though I regret not being able to be with you in person, I am truly honored to celebrate this incredible milestone with you today. This convocation is particularly special as we witness a record-breaking achievements, over 3.16 lakhs degrees and diplomas being awarded, the highest in IGNOU's history. Since its inception in 1985, IGNOU has transformed the education landscape with 35 lakh students, a presence in 58 nations, and the top ranking among open university categories in NIRF 2024. It's not just India's pride but a global leader in open and distance learning. IGNOU stays true to its motto of Jan Jan Ki Vishwavidyalaya, ensuring that knowledge is not a privilege but a fundamental right for millions. More than an institution, IGNOU is a movement, one that has changed the lives of millions who once thought education was beyond their reach. Education has the power to change lives. Think a watchman working night stops to support his family. He once believed education was beyond his reach, but through IGNOU's flexible courses, he pursued a data entry program and secured a better paying job. Picture a young boy in the remotest village where opportunities are scarce. Through IGNOU's distance learning program, he accessed quality education from his hometown and became the first graduate in his family. These are not just stories, they are proof of IGNOU's impact. IGNOU democratizes education, restores dignity to learning, and ensures no dream is left unfulfilled. Friends, India's education system is undergoing a historic transformation. The NEP 2020 is redefining learning with a focus on equity, accessibility and excellence. I am happy to see IGNOU playing a crucial role in turning these policy goals into reality. IGNOU's vast network of regional and learner support centers continues to empower students from rural areas, tribal communities, women, PWDs, jail inmates and defense personnel, a true reflection of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. एजुकेशन सिस्टम में आप क्या चेंजेस चाहते हैं, क्या इसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है और क्या चेंजेस वो होने चाहिए जो एजुकेशन सिस्टम में आज बहुत ज़रूरी हैं?
हाँ, बहुत से चेंजेस तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें बताई गई हैं, लेकिन कुछ बातें मैं उसमें जोड़ देना चाहता हूँ या उसको परिमार्जित करके संक्षिप्त कर देता हूँ कि जो चेंजेस चाहिए वो ये है कि जैसे हम कहते हैं कि वन नेशन या वन नेशन वन जो है सर्कुलेशन या वन नेशन वन वोट वन इलेक्शन, पूरे देश में जो बिखराव दिख रहा है ना उसको ज़रा कम करना है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि सब एक ही प्रोटोटाइप हो जाए, अपने अपने क्षेत्रीयता के हिसाब से स्कूली शिक्षा में थोड़ी विभिन्नता भी हो, लेकिन विभिन्नता होने के बाद भी कि शिक्षा के नाम पर स्कूल के से शिक्षित विद्यार्थी कम से कम क्या चीज़ को लेके सभी एक साथ आगे बढ़ें, कॉलेज लेवल पर, इंटर लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर, आगे भले पोस्ट ग्रेजुएशन पर बिल्कुल ही अलग हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन पहली कक्षा से लेकर के और कम से कम चलिए मान लीजिए +2 के लेवल तक, जहाँ हम कंपलसरी कोर्सेज पढ़ाते हैं, थोड़े ही बहुत चुन पाते हैं आप +2 तक, वहाँ एक जैसे रीढ़ की हड्डी पर पूरा शरीर खड़ा होता है, वो हम ज़रूर चर्चा करें कि कौन सी ऐसी शिक्षा है जिसके बिना, चाहे उस प्रदेश का हो कि उस प्रदेश का हो, उसके बिना वो शिक्षित ही नहीं कहलाएगा। इस पर विचार होना ज़रूरी है। देखिए, आज जो हमारा 30th कन्वोकेशन हुआ है और विश्वविद्यालय को 1985 में जब शुरुआत हुई थी विश्वविद्यालय की, उसके बाद से ये 30th कन्वोकेशन आज हुआ है। तो इसमें अब तक जो है हमने लाखों विद्यार्थियों को डिग्री दी हुई है और विश्वविद्यालय ने इतने लाखों विद्यार्थियों को, इसमें एक कम उम्र से लेके अधिक उम्र तक के सभी विद्यार्थी इसमें शामिल हैं और इसमें महिलाओं की संख्या आज की तिथि में बहुत ज़्यादा है। और हमें दूर दराज के क्षेत्रों में, जैसे हमारे जो बच्चे शहरों में आके नहीं पढ़ सकते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, उन तक पहुंचना इस विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा एम रहा है। और वो हमारी जो कोशिश है विश्वविद्यालय की, इतने हमारे जो कुलपति रहे हैं उनके निर्देशन में इतना अच्छा मतलब विश्वविद्यालय कर रहा है और आज भी जो हमारी कुलपति महोदय हैं उनके निर्देशन में भी ये हम वहाँ तक पहुँचने में और उनको डिजिटल माध्यम की तरह से, जाए पहले जो था वो माध्यम जो है बदलता गया टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और आज के सिनेरियो में जो भी माध्यम हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे एआई हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे ऑनलाइन कोर्सेज हो, सब में हम धीरे धीरे परिवर्तित करते जा रहे हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो NEP 2020 के अंदर में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और जो हमारे माननीय मंत्री जी जिसके ऊपर बार बार जोर देते हैं, उसके तहत में हमारे बहुत सारी भारतीय भाषाओं में जो हैं कोर्स जो हैं हमारे तैयार हो रहे हैं। और अभी तो उड़िया में भी माननीय मंत्री जी ने उड़िया में भी जो MBA कोर्स की शुरुआत करी है वो वहाँ पर भुवनेश्वर में की थी। और ऐसे ही हमारे जर्नलिज्म का जो कोर्स है वो भी आपको तमिल में भी लैंग्वेज में मिल जाएगा। इसी तरह और भी भाषाओं में कन्वर्ट। For me, the whole IGNOU experience was amazing because I was working, so I couldn't give full time going to a regular college. But the study materials were at par with any other, master's degree program, I felt. And there were, though I have been a lifelong student of psychology, I read books about psychology all the time. In spite of that, I did find a lot of value in IGNOU material. And I think what really helped me win the gold medal is my consistent work. And my advice to students is look for long cuts, don't look for shortcuts. यहाँ पे हर लैंग्वेजेस, चाहे वो कोई भी रीजनल लैंग्वेजेस हो, चाहे वो स्टूडेंट छोटा हो, बड़ा हो या फिर सीनियर सिटीजन हो, वो भी अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं। तो आपको ये प्रोग्राम और इसकी ये विजुअल्स कैसे लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये ओपन लर्निंग का जो सिस्टम है आपको कैसा लगा, इस पर आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी। वीडियो जर्नलिस्ट विकी वर्मा के साथ मैं अर्पिता सिंह।